Hello students, good morning all of you and welcome back to our online class Maths 8th standard. Students, today we are going to start a new chapter, that is our 12th chapter, profit, loss and a discount and a tax. In this chapter we are going to learn about this. We will discuss about the profit, loss and a tax and a discount. Okay, so students, first of all, before going to this chapter, first of all we will discuss about that what is the cost price, what is the selling price. Okay, then after we will discuss what is that profit or loss or a discount or the tax about. Okay, so already in previous classes, I mean 7th classes, you have got that about this, but once again I will remind you. So what is that cost price? You have heard that students, whenever somebody purchased an articles like one toy or the clothes like dresses, you are asking what is the cost price, कितने से खरीद किया, तो उसको बोलते हैं हमें क्या है, कॉस्ट प्राइस. ठीक है, जो खरीद करते हैं हम जो शॉप से जाकर खरीद करते हैं, जितना पैसे से पैसा देकर शॉपकीपर को हम लेकर आते हैं उसको बोलते हैं हमें क्या है, कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तुम बुक सेलर का शॉप जा रहे हो और एक पेन पूछ रहे कितना प्राइस है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस. दैट मीन्स जो प्राइस आप दे रहे हैं दुकान वाले को उसको बोलते हैं हमें कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तो कॉस्ट, व्हाट इज दैट कॉस्ट प्राइस? द कॉस्ट प्राइस द अमाउंट पेड टू बाय एन आर्टिकल्स, व्हाट एवर यू आर पेइंग टू द शॉपकीपर टू बाय दैट इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट प्राइस. द अमाउंट और रुपीस और अमाउंट और price is paid to buy an article, that price is called as cost price. ठीक है, so students, sometimes you will study that here also overhead expense. Would you have heard that overhead expense, overall expense or overhead expenses? What do you mean by that? That is generally whenever you are purchased on articles, that extra fees is added to that cost price, that is called as overhead expenses. ठीक है, मतलब suppose you purchased one TV. ठीक है, you purchased one TV 5000 पे परचेस किया. ठीक है, फिर आने के बाद ट्रांसपोर्ट लगता और कुछ सपोज टू रिफाइनिंग मतलब मॉडिफाई करने के लिए कुछ पैसा लगता, टैक्स भरने पड़ता. ठीक है, कलरिंग करना पड़ता, वट एवर यू हैव टू डू दैट एक्स्ट्रा थिंग्स फॉर दैट इज एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव एंड दैट विल बी एड विथ द कॉस्ट प्राइस, दैट इज कॉल्ड एज ओवरहेड एक्सपेंस. ठीक है, एक एग्जाम्पल आई विल टेल यू. सपोज वन शॉपकीपर डूइंग दैट बिजनेस and he purchased one TV 5000 where Aurangabad, at the Aurangabad. What is that cost price? That means it's the cost price of TV at that time at the 5000. Okay, he brought from the Aurangabad to Basmat. Then how much the transport charges are there? Suppose 200 rupees he paid for that to bring the TV from Aurangabad to Basmat. That means 200 rupees extra he had given. So that time whenever he want to sell it, that means this 200 also want to add and extra if profit we need, then 5200 he should think that is the cost price, overhead expense, that is you have to add. ठीक है, that means if he will sell 5500 or 300, then 100 rupees extra profit will get. But 5000 purchased, if he will sell that 5100, then he will get loss because 200 rupees extra expense be there. So students, that is called as overhead expense. Okay, so students, the expenses incurred in packing purposes or cartage, taxes, labor charges, extra are called overhead expense, and especially these are normally included the cost price. Sometimes कॉस्ट प्राइस का साथ रहता हो नहीं, अदरवाइज इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस जब नहीं ऐड हुआ तो ऐड होगा तो कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसिव तुमको ऐड करना पड़ता.
ठीक है। जो सेलिंग करते हैं उसको क्या करते हैं, वो पूरा एक्सपेंसिव जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज के साथ वो ऐड करके बोल देते, नहीं तो तुमको पेड करके तुम पेड करा तो बाद में तुम टोटल कॉस्ट प्राइस को उतना ही ऐड होना है, ठीक है, उसको बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसिव। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? And students, remember, it is represented, cost price is represented by CP. C stands for cost price, CP. And what is the selling price? The price or amount at which an article is sold. शॉपकीपर सेलिंग करते हैं, हमको कितना से सेलिंग कर रहे हैं, जो सेलिंग प्राइस वो जितना पैसा में हमको दे रहे हैं उसको बोलते हैं हमें सेलिंग प्राइस। द अमाउंट और प्राइस इज एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड is called selling price and it is represented by SP. SP का मतलब selling price, S for selling, P for price. So next students we will discuss for now what is that profit. Students, if the selling price is more than the cost price, at that time जब हमें खरीद करेंगे और सेलिंग करेंगे वही टाइम पे हमको मालूम पड़ेगा कॉस्ट प्रॉफिट हो रही है और लॉस हो रही है एक चीज का, ठीक है। जो शॉपकीपर को क्या करते हो, जब सेलिंग करते हैं शॉपकीपर को ही मालूम पड़ेगा वो प्रॉफिट हो रही है कि लॉस हो रही है, ठीक है। क्या हो ना, जब एक पेन को एक टीवी को मैं बोले बट आई टोल्ड टीवी ही परचेस्ड 5200 पे, मतलब 5000 परचेस्ड ओवरहेड एक्सपेंसिव 200, सो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी ही वाट थिंक 5200. If suppose he will sell it 5500 for the TV, then he will get that profit because that selling price is now 5500, cost price कितना है 5200, सो इसीलिए 300 रुपीज एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो जो सेलिंग प्राइस इधर ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हुआ तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। जब लेस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस से, मतलब 5200 से 5000 पे सेलिंग कर दिया, तो इफ ही विल सेल इट 5000 देन 200 रुपीज लॉस हो जाता, क्योंकि सेलिंग प्राइस जब कम होता कॉस्ट प्राइस से तो लॉस हो जाता, ठीक है। सपोज एक छोटा एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन टू अगेन ऑल्सो। सपोज वन पेन यू हैव परचेस्ड 10 रुपीज, कितना से खरीद किया, 10 रुपया से खरीद किया, तुम उसको 12 रुपया और 10 से और 12 रुपया से तुम सेलिंग कर दिया, दूसरा फ्रेंड्स को तुम 12 रुपया पे सेल कर दिया, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा? कैन यू से? यस बेटे, प्रॉफिट होगा, क्योंकि तुम 10 रुपये पे खरीद किया, 10 रुपीज में खरीद किया, लेकिन उसको 12 रुपीज में सेलिंग किया, तो 12 रुपये से सेलिंग करे तो 2 रुपया तुमको प्रॉफिट हो गया। सेलिंग रुपये बड़ा हो तो ज्यादा होगा, तो कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो लेट अस सी दैट फ्रेंड्स, इफ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कैसे मालूम करना है कितना प्रॉफिट हुआ, बोल कर कितने से सेलिंग करा और कितने से खरीद करा, उसको सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो जो बैलेंस आएगा उसको बोलते, जो रिजल्ट आएगा उसको बोलते हैं हमें प्रॉफिट। किससे? सेलिंग प्राइस कितना किया उससे कॉस्ट प्राइस कितना से खरीद किया था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? ना प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू जितना प्रॉफिट मिला उसका बाय कॉस्ट प्राइस कितना से खरीद किया था इनटू 100, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज निकलते किसका ऊपर, कॉस्ट प्राइस का ऊपर, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का ऊपर कितने से खरीद किया उसका ऊपर ही प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला इक्वल क्या है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, और प्रॉफिट को हमें भी गेन बोल सकते बच्चे। कब कब क्वेश्चन पे ऐसा आएगा, गेन, गेन का मतलब क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। तो गेन परसेंटेज इज इक्वल टू आल्सो गेन बाय सीपी इनटू 100, जैसा प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस हम लिख रहे हैं, सेम लाइक गेन परसेंटेज, सेम गेन एंड प्रॉफिट द सेम थिंग्स, नथिंग एल्स टू चेंज, ठीक है। तो गेन परसेंटेज इक्वल क्या है, गेन बाय सीपी इनटू 100, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट सम problems, and also we will discuss about the what is that loss percentage and other some with that some examples, okay. Okay students, so now we will discuss about that how that profit of percentage or loss that we will discuss. Now see that first of all I have written that one example, you can understand that you should say whether it is profit or loss, then after you can find out what is that loss percent or profit percent, okay. So now we should see students, Kishore bought a CD player.
क्या करा वो, एक सीडी प्लेयर खरीद किया। किशोर बॉट ए सीडी प्लेयर फॉर हाउ मच, 3,500 rupees. He sold it for 4,000 rupees. Find his profit percent. Already it has given to you. Okay students? Students, carefully you should find out what is that cost price. But मतलब खरीद किया तो उसको बोलते हैं हमें cost price. So what is the cost price of the CD player? 3,500. So हम लिख सकते हैं given that cost price is equal to कितना है वो, 3,500. तो बाद में क्या करे हो, he sold it for 4,000. that means sold मतलब selling price. selling price is equal to क्या होता हो, 4,000. so what did you understand? you should comparison check करो. ये 3,500 cost price, selling price कितना हुआ, 4,000. that means selling price is greater than cost price. so what will get, जब तुम selling price ज्यादा हो जाएगा, cost price कम ही होता, तो क्या होगा, what it will happen, now the it will get that profit or the will get the gain. so what will get that means gain or profit. so gain is equal क्या होता, selling price minus cost price is equal to कितना हुआ gain, selling price मतलब 4,000 minus 3,500 we got 500 rupees क्या है gain. so हमको क्या पूछ रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज और गेन परसेंटेज. आल्सो वी कैन राइट हियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट पूछा ना, हम लिख सकते हैं इधर प्रॉफिट. इट इज इजी फॉर अंडरस्टैंड. प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एंड 4,000 सेलिंग प्राइस माइनस 3,500, सो 500. हेंस वी गॉट प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना बचे, 500 rupees. बट नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट. दैट मींस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल क्या होता है बच्चों, फार्मूला क्या है हमको याद रखना है फार्मूला. सो प्रॉफिट परसेंटेज बाय सीपी इनटू 100 इज इक्वल कितना प्रॉफिट हमको मिला, 500 मिला. ठीक है, तो 500 बाय कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो यू शुड सी द कॉस्ट प्राइस 3,500 इनटू 100. सो नाउ यू शुड डू वन थिंग, डबल जीरो हियर, डबल जीरो कैंसिल करो. ठीक है, 5 रिकॉर्ड करो, 500 जा 5 7 जा. ठीक है, तो कितना आ रहे, 100/7% आ रहे. ठीक है, हम इसको मिक्सर फ्रैक्शन करेंगे और प्राइस में करेंगे तो भी 7 1 जा 7 हियर 30, 7 4 जा 28, 2/7%. so this is your profit percentage. okay students, now we should see the students next things one. if the selling price is less than the cost price, जब सेलिंग प्राइस इधर बढ़ गया तो हम प्रॉफिट लेंगे, लेकिन वो सेलिंग प्राइस जब छोटा हो जाए, कम हो जाता, क्या होता, लॉस हो जाएगा. लॉस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. एंड इट्स लॉस परसेंटेज सेम लाइक फॉर्मूला स्टूडेंट्स, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. ओके, सो सेम as I have given against this one example students. Ramu bought a pen for 20 rupees. कितने से खरीद किया, 20 rupees में. एंड ही सोल्ड फॉर इट 15 rupees. 20 रुपये से खरीद किया लेकिन 15 रुपये पे वो सेलिंग कर दिया. तो फाइंड इज द लॉस परसेंटेज. सो सॉल्यूशन क्या होता है बच्चे, फर्स्ट गिवन दैट कॉस्ट प्राइस कितना है, खरीद किया था कितना से, 20 rupees. यस, 20 rupees. एंड व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, 15 rupees. So क्या हुआ इधर, सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस. एंड व्हाट वी गॉट, लॉस इज इक्वल टू क्या होता है वो, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 20 rupees माइनस सेलिंग प्राइस 15. सो कितना मिला हमको, 5 rupees मिला. दैट मींस लॉस 5 rupees हुआ. सो क्या होगा, लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज फॉर्मूला क्या है, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. लॉस हाउ मच, 5, कॉस्ट प्राइस हाउ मच, 20 into 100. ओके, सो नाउ इफ वी गॉट 25 जा तो 25% लॉस हुआ. ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक दैट यू हैव टू remember that all formula also students. And for you have to do that also exercise for your part is there. Exercise you can do
exercise 12.1 up to 7 bits. Homework for you students. Exercise 12.1 question number 1 to 7 you have to do in your homework. ठीक है, but लेकिन one thing याद करना है बेटे, you have to remember that all the formulas. Okay, this is very important for you. What is that loss? What is the profit? What is the loss percentage formula? What is the profit percentage formula? So today I have told you 4 formula. Please you have to by heart and remember this 4 formula. Thank you all of you. Have a nice day.